joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Hallelujah. We've got eternal joy, everlasting of everlasting, because the King of Kings whom we worship, He's great, He's mighty, He's always good, and His name is Jesus. Amen. We bless your name, O Lord God. We thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सभी के गाएंगे, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। ओ सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया, मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पे आया, मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूं। सब मिलके गाएंगे, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तुमने मुझे आशा दी, हालेलुया। जब मैं निराशा में था, तुमने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु, हालेलुया। जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन आनंद से, हालेलुया। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। ओ
जीवन है तू, आनंद परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, ओ सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, ओ सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा। Let's pray together. सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा। Let's give a hand of praise to our God, because He deserves all the glory and the honor. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We praise you, Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and mind and soul. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Every addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus. Hallelujah. Over fear and all anxiety. Yeah. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life.
over every enemy. Hallelujah. Jesus, for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Oh, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, speak the holy name. Jesus. Your name, oh, your name is power. Your name is healing. Your name is healing. Your name light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Like a fire. Oh, your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Like a fire. Once again, we'll sing, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Come on. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus in, I speak the holy name. Jesus. Let's declare together. Once again, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the streets. Oh, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Oh, break every stronghold through the shadows. Like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Oh, hallelujah. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every storm. Shine through the shadow. Burn like a fire. Burn like a fire. Burn like a fire, oh God. Burn like a fire. Oh Jesus, there are breakthroughs in your name, oh Lord. There is healing in your name, oh Jesus. Hallelujah. Let's worship Him in this morning.
Speak to him in this morning. Tell him, Lord Jesus, I surrender all, oh God, Father. तेरा नया मस्सा, तेरी नई anointing मेरे जीवन में आए. Hallelujah. Hallelujah. तेरा मस्सा परमेश्वर हमारे जीवन में आए यीशु. तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता. तू ही है वो जो मुझको बचाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता. देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता. मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. मैं आजाद हूँ. हालेलुया. मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. तू ही है वो जो मुझको उठा
तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, हालेलुया। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं करूं, हाँ मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं करूं, ओ मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं, हालेलुया। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। ओ तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, हालेलुया। मेरे जीवन से ओ तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर
up the holy name of Jesus. When Jesus entered Jerusalem, he said, if you don't worship me, the things that do not have life will start worshiping him. This is a beautiful opportunity to lift our hands to heaven and say, God, we thank you this morning. We thank you that you chose each one of us. We thank you that you are not done with our lives. We thank you that your plans are higher for us. We thank you that your plans are higher for us. Your purposes are higher for us. Your thoughts are higher for us. God, we thank you that you love us so much that you went onto that cross to die for us. What else we can ask Jesus this morning? Thank you, Jesus. God, we lay it all this morning at your feet. We lay our crowns at your feet this morning, Jesus. Our thoughts, our worries, the things that are taking our attention away from you, we lay it at your feet this morning. We are fixing our eyes onto you, Jesus. Be enthroned on our praises. Be enthroned on our praises. Be enthroned on our praises this morning, God. For you are true living God. For you are true living Jesus. There is no other name that can offer salvation to us. There is no other name in whom we can find life. There is no other name who can deliver us, Jesus. It's you and you alone this morning. We give it to our God. We give it to our. Come on, let's worship Jesus. Let's
सवालों में भी whatever may come सकते our way, हैं। God, you are all we need. And here we are leaning on you, Lord Jesus. Our good Father. Dwell on our praises this morning, O God. We offer you everything that we have inside of us. We lay it at your feet, O King. And we shout, Hail Jesus! Hail Jesus! Be enthroned on our praise. This is all we can bring to you this morning. A broken heart and a contrite spirit, O Lord. Be enthroned, be enthroned, be enthroned, Jesus, this morning. We pour it out at your feet, Jesus. May every chain be broken as the saints sing his praises this morning. May every disease be healed as the saints sing his praise. As his presence is descending down this place, let every broken heart be an alabaster jar before God this morning. Lift up the King on our praises this morning. He deserves the true praise. शुक्रिया Pour it out, church, pour it out at his praise. क्या ला सकता कहता तुझे बस शुक्रिया। अब्बा फादर, हम तेरी आराधना करते हैं यीशु, तेरी प्रस्तुति करते हैं तेरे सारे ब्लेसिंग्स के लिए, तेरी सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए परमेश्वर, तेरे प्यार के लिए जो तूने हमारे लिए उस कल्वरी क्रूस पर दिखाया परमेश्वर। तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर यीशु। तू हमारे गुनाहों को माफ करता है परमेश्वर, हमारे दिल को साफ करता है परमेश्वर। तेरे लहू के द्वारा यीशु हम छुड़ाए गए हैं, हालेलुया। तेरे मार खाने से हम छुड़ाए गए हैं परमेश्वर। तेरे मार खाने से, तेरे लहू बहाने से परमेश्वर हमें आजादी मिली है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम को हम चिल्ला चिल्ला कर गाएंगे यीशु, क्योंकि तेरा नाम सदा के लिए ऊंचा है परमेश्वर। तेरा नाम सदा के लिए ऊंचा है यीशु। सारी महिमा, सारा जलाल हम तेरे नाम को देते हैं परमेश्वर। Glory, honor, praise to you alone, Father God Jesus. ये प्रार्थना हम तेरे मीठे और तेरे मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए परमेश्वर का ताली बजाकर इस जगह पर स्वागत करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। The bringing the word. ये समय है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। Come on, let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you once again this morning. Lord, thank you for the very breath in us. You brought us here to sit in your presence, to partake in the worship, Father God, and to hear your word. Whatever word you have laid on my heart, help me to bring it the way you want it to be, Father God. I pray that we will open our hearts to receive your word. And Holy Spirit, take complete control and do what only you can do. We totally surrender to your presence this morning, O God. There's nothing in our lives that is more important to us than you, God Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Take total control over us, O God, Father. We give you all glory, all honor, all praise. In Jesus' holy name we pray. आमीन, Amen. आमीन।
Can I hear a loud amen? Amen. I love noise. Hallelujah. And I like noise. So whenever I'm coming here to preach, please show some energy and be responsive to the pastor. Be nice to the pastor, be responsive. And every time we bring the word, personalize it. When we say hallelujah, shout a hallelujah, make it so personal. Shout an amen so that we are actually coming together and shouting and declaring and believing that word. Hallelujah. Hallelujah. I want to read to you from 1 Samuel chapter 17, verses 47 and verses 50. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and he will give all of you into our hands. Verse 50. So David triumphed over the Philistine with a sling and a stone. Without a sword in his hand, he struck down the Philistine and killed him. Hallelujah. हालेलुया। ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार था, भाले के द्वार जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, वह वही तुम्हें हमारे हाथ से में कर देगा। आयत 50। यो दाऊद ने फिलिस्तियों पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। We all know that this is the story of a shepherd boy called David. हम सब जानते हैं ये जो कहानी है वो दाऊद के बारे में है। And his victory over the giant. और उसकी जो विजेता हुआ था बड़े इंसान जीवित जायंट के ऊपर। And scholars say that David was his teenage when he actually fought the Goliath. जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि जो दाऊद था वो एक छोटा लड़का था जब उसने गोलियत के साथ लड़ाई की। Scholars say he must be somewhere around 15 to 17 years old. जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि वो 15 से 17 साल की उम्र में था। And most of us would have come across this story in our Sunday school, in our Bible studies. This is a very famous event from Bible. और हम में से बहुत लोग इस बड़े इवेंट के बारे में जानते हैं, हम संडे स्कूल में इसके बारे में सीखते हैं। But I'll give a little context to this story before going into the sermon. मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊंगी कि जब सरमन में से जाने में से पहले। David is the youngest of the 7 siblings. जो दाऊद था वो 7 भाइयों में से सबसे छोटा था। Unlike his brothers, he had a different profession. और उसके भाइयों की तरह उसका जो प्रोफेशन था वो अलग था। He was a shepherd by profession. वो चरवाहा था। But 3 of his brothers were soldiers in the Israel army. जो उसके 3 भाई थे वो सिपाही थे इजराइल की आर्मी में। As a shepherd, David spent most of his time looking after his sheep. चरवाहा होने के कारण उसका ज्यादा समय भेड़ों को देखने में निकलता था। And his role as a shepherd was to nurture, to provide, to lead, and to protect the sheep. जो चरवाहे का जो रोल होता है वो प्रोटेक्ट करना और प्रोवाइड करना और अपनी देखभाल करना भेड़ों की। Whenever we hear the name shepherd, जब भी हम चरवाहे के बारे में सुनते हैं, there is a default image we make in our mind. हम अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लेते हैं। A man walking with a staff in his hand. एक इंसान अपने हाथ में लाठी लेकर चलता हुआ। And there's a lot of sheep around him. और उसके आसपास बहुत सी भेड़ें। And we have this image of the shepherd that he's a very calm and living in a calm, surroundings. हमारे दिमाग में एक ऐसी पिक्चर बनी हुई है कि जो चरवाहा है वो बहुत काम रहता है और उस काम सराउंडिंग के द्वारा रहता है। No one has to paint that picture, but by default, every man has this image of a shepherd in his mind. किसी को पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं, पर हमारे दिमाग में वो ऐसी तस्वीर बनी हुई है। A little known fact about shepherds says, जो शेपर्ड के चरवाहों के बारे में एक फैक्ट है, they not only carry a staff, but they also carry a sling. वो सिर्फ स्टाफ नहीं कैरी करते, वो एक गोफन भी कैरी करते हैं। The sling is to protect sheep whenever a wild animal tries to attack the sheep. जो गोफन है वो प्रोटेक्ट करता है जब जंगली जानवर अटैक करते हैं sheep। The staff is more for guidance and support. जो लाठी है वो गाइडेंस के लिए है, सपोर्ट के लिए। But the sling the shepherd uses for a defense purpose. जो गोफन है वो डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो जरूरत करता है। I titled my sermon today as Shepherd with a Sling. जो मैंने आज टाइटल दिया है अपने सर्मन का, चरवाहा एक गोफन के साथ। But we are going to talk about a shepherd. हम बात करेंगे चरवाहा के बारे में। Who not only carries a staff but carries a sling.
वो सिर्फ स्टाफ नहीं, लाठी नहीं कैरी करता बल्कि गोफन भी कैरी करता है। So this is the sermon about a shepherd who carries a sling. ये जो Sling. जो वचन है आज का वो है गोफन के बारे में, जो एक चरवाहा कैरी करता है। Now this giant who David fought, जो गोलियत था जिसके साथ दाऊद लड़ा, Bible says he was 9 feet and 9 inches tall. बाइबल कहती है कि वो 9 फीट से भी ऊंचा था। Probably the height of the ceiling. आई थिंक सीलिंग के जितना। Every morning, हर सुबह the Philistine army, when they went to war with Israel, जो फिलिस्ती आर्मी सेना थी वो इजराइल के आगे लड़ने के लिए आते थे। so every morning हर सुबह the giant would come out जो गोलियत था वो बाहर आता था and he would throw scary statements at the Israel, और वो आके बुरा बुरा बोलता था और बड़ी चीजें बोलता था आकर, and he would come out and challenge. और वो आकर चैलेंज करता था इजरायलियों को, Even if one real man is there in Israel, come and fight me. अगर एक तुम में से कोई असली मर्द है तो मेरे साथ आकर झगड़ा करो। So you don't have to fight, both the armies don't have to fight, but one real man from Israel come and fight me. If he defeats me, we will give you victory. दोनों जो सेना है उनको झगड़ा करने की जरूरत नहीं, पर एक इंसान आकर अगर मुझसे लड़ेगा तुम मुझे हरा पाओगे। And every time Bible says that Israel army saw this giant, जब भी इजराइल की सेना उस जायंट को देखती थी, गुलात को देखती थी, they were in fear, वो डर में थे, and they would go and hide back in their tents. और वो जाकर अपने तंबू में छुप जाते थे। And this was going on for 40 days. और ये 40 दिन तक चलता रहा। And somehow they would again gather courage, और फिर वो इकट्ठे होते एक उत्साह के साथ, and they think, okay, we'll go face the giant. और वो कहते कि हाँ आज हम जाकर उसको गोलियत को फेस But करेंगे। the minute Goliath comes in front of them, पर जैसे गोलियत बाहर आता था उनके सामने, their hearts would melt in fear. और उनके जो दिल थे वो पिघल जाते थे डर के मारे। And Goliath would go on throwing insults and mockery towards God and threats toward God's people. और जो गोलियत था वो आकर लोग परमेश्वर का मजाक बनाता था, परमेश्वर के लोगों का मजाक बनाता था और उनको डराता था। David's 3 brothers were in this Israel army who were in that fearful situation. जो दाऊद के 3 भाई थे वो भी इस सेना में थे और वो डर में थे। So David was a shepherd and he's unaware of all this happening. जो दाऊद था उसको इस चीज के बारे में, इस झगड़े के बारे में, इस वॉर के बारे में कुछ पता नहीं था। So David's dad calls David one day दाऊद के जो पिता हैं उन्होंने उसको बुलाया एक दिन and tells him, और उसको बोलते हैं go give some food to your brothers and see how they are doing in the अपने battlefield. भाइयों को कुछ खाना देकर आया और देख के रहा कि वो क्या कर रहे हैं बैटलफील्ड में, कैसे हैं। Daddy was thinking brothers are fighting a fierce battle. पिता सोच रहा था कि भाई उसके बच्चे हैं वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। He is not aware that the brothers are sitting in fear inside a tent. पिता को ये पता नहीं कि भाई जो उसके बच्चे हैं जो डर के मारे तंबू के अंदर बैठे हैं। David listens to his dad, obeys his dad and brings food to the brothers. जो दाऊद है अपने भाई पिता की आवाज कहने को मानता है और अपने भाइयों के लिए खाना लेके जाता है। And then he gets to hear all this statements of Goliath. और फिर उसको ये स्टेटमेंट सुनने को मिलती है गोलियत से। He listens to these taunts and mockery towards God. जो दाऊद है वो इन बातों को सुनता है जो परमेश्वर की ओर बताई गई। Remember, I told you David was a teenage boy at that time. मैंने आपको बताया कि जो दाऊद था वो टीन एज में था उस समय। And probably his height was no longer taller than Ruel. मे भी उसकी जो हाइट भी थी वो रूअल के से कम ही होगी। But the giant is as tall as the ceiling. जो गोलियत था वो सीलिंग से भी ऊंचा था। And this teenage boy says, I accept the challenge. और ये जो दाऊद है उसने कहा कि मैं तेरा चैलेंज जो है लेता हूँ। I don't care if a real man is there or not, but I will not tolerate the mockery towards my God. मुझे नहीं पता कि कोई असली इंसान है यहाँ पर नहीं, पर मैं अपने परमेश्वर के आगे कोई भी मजाक नहीं सहूंगा। David understood that was an opportunity set up by God. दाऊद को पता लग गया कि ये जो अपॉर्चुनिटी है परमेश्वर के द्वारा दी गई है। As I said, David was a worshipper. जैसे मैंने बोला कि जो दाऊद था वो आराधक था। The best quality of a worshipper, जो असली अच्छी क्वालिटी जो आराधक की है, they do not connect to God based on emotions. वो कनेक्ट नहीं होते परमेश्वर के साथ इमोशन के ऊपर। They do not connect to God based on their mood. वो कनेक्ट नहीं होते परमेश्वर के साथ उनका मूड कैसा है। But they wait for an opportunity. वो इंतजार करते हैं अपॉर्चुनिटी के। Hallelujah. हालेलुया। They just need an opportunity to stand up for God. वो उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए परमेश्वर के आगे खड़ा होने के An लिए। opportunity comes as a byproduct of obedience. वो जो अपॉर्चुनिटी है वो ओबीडियंस के साथ मिलती है। David set out in obedience as instructed by his dad.
जो दाऊद था वो उसके पिता के जो द्वारा चीजें कही गई थी उसके लिए उसने आज्ञाकारी था। Opportunities doesn't come like that. जो अपॉर्चुनिटी है ऐसे नहीं आती। Opportunity comes as a result of your obedience. जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारी ओबीडियंस के ऊपर रिजल्ट है। David set out in obedience as said by dad. जो दाऊद है उसके ओबीडियंस में रहा अपने पिता के द्वारा। He could have said, I am busy shepherding my sheep. वो बोल सकता था कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं अपनी भेड़ों का ध्यान रख रहा हूँ। But Bible doesn't say anything like that. Bible says he set out as instructed by his dad. उसने कहा कि वो बाहर निकला और जैसे उसके पिता ने उसको बोला था। And as he came there and he saw the Goliath talking all this rubbish. और जब वो वहां पर आया और उसने देखा कि गुलायत जो है वो परमेश्वर के बारे में ऐसी बात बोल रहा है। The worshipper side of him kicked in. जो उसके अंदर का जो आराधक था उसने उसको झुंझुड़ा। He as a worshipper he could not see his fellow people being in fear. आराधक होने के कारण उसने ये देखा, वो देख नहीं सका कि उसके जो साथ वाले लोग हैं इतने डर में हैं। He knows that his people are good at fighting battles. उसको पता था कि उसके लोग जो हैं अच्छे हैं लड़ाई लड़ने में। But they right now they're sitting in fear because of this giant. वो अभी इस डर के मारे बैठे हुए हैं इस गोलियत की वजह से। David could not ignore the enemy attacking the God's people. जो दाऊद था वो इग्नोर नहीं कर सका जब गोलियत उनको अटैक कर रहा था। He could not ignore the enemy weakening God's people. वो इग्नोर ना कर सका जो दुश्मन था परमेश्वर के लोगों को कमजोर कर रहा था। A worshipper reflects the heart of a God. जो आराधक है वो परमेश्वर का दिल दिखाता है। Jesus, a good shepherd, परमेश्वर यीशु जो अच्छा चरवाहा है, he did the same. उसने भी वही चीज को किया। When he saw the enemy has captured his people, जब उसने देखा कि दुश्मन ने उसके लोगों को पकड़ लिया है, enemy has filled his people with lies. उसने देखा कि जो दुश्मन है उसने उसके लोगों को झूठ से भर दिया है। Enemy has led the people into failure and doubts and threats and fear about future. जो दुश्मन है उसने उसके लोगों को झूठ से, डर से, फियर से भर दिया है। And when Jesus saw that his people are living in insecurity, जब उसने देखा कि उसके लोग जो हैं उसके इंसिक्योरिटी के साथ जी रहे हैं, he stepped in. वो आ गया। He stepped in and he gave his life. वो आ गया और उसने अपने जीवन को दे So दिया। that you and I do not live in fear, but we live in freedom. कि मैं और आप हम डर में ना जिए बल्कि फ्रीडम में जिए। And David reflected similar heart. जो दाऊद था उसने वही दिल दिखाया। He reflected similar character. उसने वही कैरेक्टर दिखाया। When he saw this Goliath, this Philistine, this uncircumcised man, उसने जब इस गोलायत को देखा जो फिलिस्तीन था, he was throwing insults, he was throwing fear, he's throwing doubt at the people of God. और वो डर दिखा रहा था, इंसल्ट दिखा रहा था अपने लोगों, परमेश्वर के लोगों की ओर। He said, I will go. उसने कहा मैं जाऊंगा। I will stand to this giant. मैं खड़ा होऊंगा इस गोलायत के सामने। And then he runs, this little boy, he runs to the king. उसने जो छोटा लड़का राजे के पास भागता है। And he says, send me out, I will find this giant. और कहता है कि मुझे भेज, मैं इसके साथ लड़ूंगा। I don't know what got into Saul at that moment. पता नहीं क्या सॉल के अंदर आ गया उस समय। He agreed. और वो अग्री हो गया। And he puts his heavy uniform on David and say, you cannot go fight without this. उसने कहा कि ये मेरे जो अस्त्र शस्त्र हैं ये इसको पहन ले, तू इसके बगैर झगड़ा जाकर लड़ाई नहीं कर सकता। David has to obey the king. He says okay and he allows that uniform over him. और जो दाऊद था उसको ओबे करना था, आज्ञा माननी थी, उसने सारे जो अस्त्र हैं वो पहन लिया। Bible says he was very thin. He had a shrugged appearance. He was not a strong man. बाइबल कहती है वो एक तंदुरुस्त व्यक्ति नहीं था, बहुत पतला व्यक्ति था। He was a teenager. वो एक यंग व्यक्ति था। And he was trying to fit into this pattern that king has put over him. और वो उस वस्त्र में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा था। And he was trying to walk. और वो चलने की कोशिश कर रहा था। And he was trying to take each step. और वो हर एक कदम लेने की कोशिश कर रहा था। And he said, I can't go like this. उसने कहा कि मैं इसके साथ नहीं जा सकता। I am not called like this. मैं ऐसे नहीं बुलाया गया। This is not me. ये मैं नहीं। You know, sometimes we need to shake off the patterns. कई बार हमें अपने आप को झुझोड़ना होता है। We have to shake off the mindsets that we built over a period of time. कई बार हमें अपने माइंड, इस दिमाग को झुझोड़ना होता है जो हमने बहुत सालों से इकट्ठा किया हुआ है। Sometimes we have to shake off this system we built, saying that this is the way, only way God will work. कई बार हमें उस चीज को हटाना होता है जो हम कहते हैं कि इसी तरीके से परमेश्वर काम We करेगा। have defined ways how to stand in God's presence, how to run to God's ways, how to do things.
हमें देखना पड़ेगा कि कैसे परमेश्वर के रास्ते पर चलना है, कैसे चीजों को करना है। Just like David, we need to shake off the system sometimes. दाऊद की तरह हमें अपने आप सिस्टम्स को झिझोड़ना है कई I'm बार। not talking about disobedience. मैं डिसोबीडियंस की बात, अनाज्ञाकारी की बात नहीं I'm कर not रही। talking about going against the word. मैं ये नहीं बात कह रही कि अगेंस्ट जाओ परमेश्वर के But वचन। I'm talking about allowing God to use you the way He called you. मैं बात कर रही हूँ कि परमेश्वर को अलाउ करो अपने जीवन में कि वो आपको यूज कर सके। You and I need to learn to stand up to every opportunity that God placed before us and take each step as God leads us. हमें और आपको खड़े होने की जरूरत है उन अपॉर्चुनिटी के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है और हम चल सके उसके साथ। And when David said, I will go, जब दाऊद ने कहा कि मैं जाऊंगा and king is ready to send him out, और राजा जो रेडी था उसको भेजने के लिए, it hurt Goliath's ego. और वो गोलायत की ईगो को हर्ट किया। Am I a dog that you are coming to me with sticks? He was saying to David. वो कहता है कि मैं क्या कोई कुत्ता हूँ कि तू एक डंडे के साथ मुझे मार Till दिया। now he was relaxing, throwing the threats at the people of God. अभी तक वो बहुत आराम से लोगों को धमकियां दे रहा था और डरा रहा था, And now his ego has hurt. और अभी उसका जो ईगो है वो डूब गया। And Bible says he picks up his weapon and starts running towards David. वो बाइबल कहती है कि वो अपना हथियार उठाकर दाऊद की ओर भागना शुरू करता है। The weapon was 7 kilo in weight. जो उसका हथियार था वो 7 किलो वेट का था। Just picturize this giant who is the ceiling tall, carrying a 7 kilo weapon and running towards this tiny boy. ऐसा सोचें कि एक इंसान जो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, वो एक 7 किलो का हथियार लेकर इस छोटे लड़के की ओर भाग रहा है। And as the giant was running towards David, जो गोलियत है जब दाऊद की तरफ दौड़ रहा था, and this little boy took his sling and running towards Goliath. और ये छोटा लड़का अपनी जो गोफन है उसको लेकर गोलियत की तरफ भागने लगा। We were at a baby shower yesterday, हम एक बेबी शावर में थे कल, and Raya was crying for a chocolate, राया बहुत रो रही थी चॉकलेट के and Dad picked her up लिए, और डैड ने उसको उठाया, and said, "Not now, Raya." अभी नहीं राया। And this tiny tot got so offended, और ये छोटी लड़की बहुत ऑफेंड हो गई, and she tried to push Dad with all her strength with these 2 tiny hands, और उसने मुझे पुश करने की कोशिश की अपने छोटे हाथों and said, "I'm not your friend." और बोली कि मैं तेरी मित्र नहीं, That didn't move Dad. मुझे मूव नहीं किया। It was similar picture. David was running towards this giant who was running with a 7 kilo weapon. और ये सेम ही पिक्चर है जब ये डेविड उस बड़े गोलियत की तरफ जा रहा था जो एक 7 किलो का हथियार लेके चल रहा था। David wasn't worried to see the size of the giant, और दाऊद ने जो फिक्र नहीं है किया उस साइज को देखकर, उस and I'm दाऊद को sure he डेविड didn't गोलियत miss को the देखकर। weapon size in his और hand. मुझे ये भी पता है कि वो उसने उस वेपन को भी, उस हथियार को भी उसके हाथ में It देखा, didn't slow him down, उसने उसको धीरे नहीं किया, but he trusted the gift God placed in his और life. उसने परमेश्वर की उस पर भरोसा किया जो परमेश्वर ने वरदान उसको दिया था। He knew the opportunity was from God. उसको पता था ये जो अपॉर्चुनिटी है परमेश्वर की तरफ से, He knew the skill was from God. उसको पता था जो स्किल्स है मेरे पास वो परमेश्वर की तरफ And से, he knew this tiny weapon he holds is from God. उसको पता था जो गोफन है उसके हाथ में है वो परमेश्वर की तरफ से, And he's trusted the gift God gave और उसने परमेश्वर पर भरोसा किया जो गिफ्ट उस परमेश्वर ने उसको दिया था was enough to fight the battle. वो इनफ था कि उसको वो लड़ाई कर सके। Never underestimate the gifts God placed over your life. परमेश्वर के जो वरदान आपके जीवन में उनको थोड़ा ना सोचे। You don't have to be placed in a mega organization to prove that you are powerful. आपको किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होने की जरूरत नहीं कि आपको वहाँ प्रूव करना पड़े कि आप शक्तिशाली हैं। The gifts God placed over your life, be जो- faithful with it. जो गिफ्ट परमेश्वर ने आपके जीवन में दिए हैं उनके साथ विश्वासी होकर रहें। Whether to use you in a small capacity or big capacity, it's the Lord's doing. परमेश्वर का काम है कि आपको थोड़ी छोटी जगह पर यूज करे या बड़ी जगह में यूज करे, वो उसका काम। The opportunity God placed over you is your chance to pick it up and move forward. परमेश्वर जो आपके जीवन में वो अपॉर्चुनिटी देता है वो आपका चांस है कि आप उसको कैसे लेकर चलते हैं। We need to be faithful, dear friends, हमें विश्वास योग्य होने की जरूरत है, because the one who is called is a faithful God. जिसने Hallelujah. हमें बुलाया है वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। The one who gives the gift is the one who empowers that gift. जो परमेश्वर हमें गिफ्ट देता है वो उसको हमें यूज करने की भी शक्ति देता है। I love verse 41. मुझे 41 आयत देखते हैं। Meanwhile, the Philistines, with his shield bearer in front of him, kept coming closer to David. Verse 41. फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था
वह उसके आगे आगे चला। Now people, when giant was only threatening people, they only saw the giant. जब वो गुलायत था, वो लोगों को जब डरा रहा था, उन्होंने सिर्फ उस गुलायत को देखा। But now as the giant was coming closer to David, जब वो गुलायत जो दाऊद के पास आ रहा था, he was not coming alone. वो अकेला नहीं था। There was the shield bearer holding the shield, protecting this Goliath. जो ढाल पकड़ने वाला बंदा था, वो वहां पर प्रोटेक्ट करने के रेडी था गुलायत के। Even this tiny boy, if he shoots a slingshot, there is very much chance that the shield bearer would stop it. ये जो छोटा लड़का है, जब अगर अपने गोफन को घुमाकर भी अगर दाऊद के गुलायत के ऊपर निशाना लगाएगा, तो वहां पे बहुत चांसेस थे कि वो ढाल के द्वारा उसको रोक सकते थे। David didn't stop. दाऊद रुका नहीं। He didn't stop neither for the shield bearer nor for the giant. वो रुका नहीं दाऊद गुलायत को देखते हुए और ढाल पकड़ने वाले को देखते हुए। He said, "You come against me with the sword and the sword bearer." वो कहता है, तू अपने तलवार और ढाल पकड़ने के साथ मेरे आगे आता है। But I come against you in the name of Jesus. मैं तेरे सामने आता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के I नाम। come against you in the name of God of angel armies. मैं तेरे आगे आता हूँ, जो परमेश्वर है, जो स्वर्गदूतों का परमेश्वर है। And I like it. He said, Bible says he took 5 smooth stones from the stream. बाइबल कहती है उसने 5 चिकने पत्थरों को लिया। Took one और उसने एक पत्थर को लिया and shot straight at Goliath's head. और सीधा जो सर में लगता है And गुलायत। Bible says the stone sank into his forehead. बाइबल कहती है कि उसके जो पत्थर था उसके जो माथे पर अंदर तक चला गया। When someone is hit, they would fall backwards. जब किसी को जिसको पत्थर लगता है वो पीछे गिरते हैं। But this giant fell face down जो ये गुलायत था वो मुंह के बल नीचे गिरा and died. और मर गया। Bible was very specific that David picked up 5 smooth stones. बाइबल कहती है कि जो दाऊद ने 5 पत्थरों को लिया है, बड़े सही तरीके से लिखा है। Not just any stone, but smooth stones. जो चिकने पत्थर हैं उनको लिया। That caught my attention. उसने मेरी अटेंशन को पकड़ा। You know how the stones get smooth in the water? आपको पता है कि जो पत्थर हैं वो कैसे चिकने होते हैं पानी में? That process is called abrasion. उसको बोलते हैं एब्रेशन। It means that when the stones they rub against each other with friction, they collide with each other, they start rubbing off, and all that sharp ends would start falling off and become smooth. जब पत्थर एक दूसरे के साथ पानी में रगड़ते हैं तो वो एक शार्प हो जाते हैं और उसके बाद वो चिकने हो जाते हैं। The sharp ends fall when the stones hit each other वो शार्प जो है वो इसलिए होते हैं जब जो पत्थर एक दूसरे के साथ टकराते and starts becoming smooth. हैं और चिकने होने शुरू हो जाते हैं। And the force that brings, there should be a force that should bring the stones together. और एक ऐसा जो फोर्स है जो सारे पत्थरों को एक साथ लेके And आता that है happens with the speed of the water stream. और वो जो पानी की स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। And physics very beautifully explains. फिजिक्स में बड़े अच्छे से बताया गया है। The longer the stones are in the water, the smoother they are. जितनी देर तक जो पत्थर हैं पानी में रहते हैं वो ज्यादा चिकने होते हैं। When believers come together जब परमेश्वर के लोग साथ में आते हैं in prayer, प्रार्थना में in fellowship, और फेलोशिप में and worship, आराधना में, the anointing will produce the smooth stones out of our lives. जो अनॉइंटिंग है वो चिकने पत्थरों को पैदा करेंगे हमारे And then जीवन when में we से। become those 2 smooth stones, we will bring the giants down. Hallelujah. जो हम उन पत्थरों को जब हम पकड़ेंगे तो हम जाइंट्स को जो हमारे आगे खड़े हैं वो नीचे आएंगे। And the force that brings us together is the power of the Holy Ghost. जो फोर्स जो हमें साथ में इकट्ठा करता है वो पावर है परमेश्वर While का everyone is पवित्र sitting आत्मा। around in fear, जब सब लोग डर में बैठे होंगे, but the believers come so powerful जो परमेश्वर के लोग हैं ताकत के साथ आएंगे। that when they pick up a stone of prayer, जब वो प्रार्थना का पत्थर उठाएंगे, a stone of praise, जो आराधना का पत्थर a stone उठाएंगे, of testimony, जो आराधना की गवाही उठाएंगे, a stone of faith, जो पत्थर जो विश्वास का पत्थर है उसको उठाएंगे, and when they release it in the fellowship and thrown at the giant, जब वो उसको रिलीज करेंगे उस पत्थर को फेलोशिप में, the great doing of the Lord is witnessed. वो जो परमेश्वर की गवाही है वो गवाही है। Be a spark when you come together. जब हम साथ में आते हैं एक स्पार्क बनकर रहें। Be the spark when we come together that will become fire for Jesus. Hallelujah. ऐसा स्पार्क बने कि जो फायर बने परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए। Pastor was talking about one of his relatives who wants to visit us, मैं बात कर रहा था एक हमारे रिलेटिव के जो हमें विजिट करना चाहता and है। he was very interested in coming and visiting the church. वो बहुत इंटरेस्टेड था हम विजिट करने के लिए चर्च को। And my first question to Pastor was,
मेरा पहला क्वेश्चन पास्टर को था, ये बजाता है या बुझाता है? ये कुछ बचाता है या ये बुझाता है? Does he play something for the Lord or brings down the fire of the ये Lord? क्या कुछ इंस्ट्रूमेंट पे जाता है या बुझा देता है? That was in joke, I said that. एक जोक था। But be the spark that you will light the fire. पर एक ऐसी चिंगारी बने जो फायर को लाइट कर सके। If the stone picked by David was a praise, जो पत्थर उठाया गया था आराधना का, if it represented prayer अगर वो प्रार्थना को बताता है or faith, और विश्वास को बताता है, the sling represented godly principles. जो गोफन है वो प्रिंसिपल्स परमेश्वर के प्रिंसिपल्स के बारे में बताता The sling represents integrity. है। जो गोफन है वो इंटीग्रिटी के बारे में बताता है। The sling represents character. जो कैरेक्टर है जो गोफन है कैरेक्टर के बारे में बताता है। It represents commitment कमिटमेंट के बारे में बताता है and it represents obedience. और आज्ञाकारिता के बारे में बताता है। No matter how smooth the stone is, कितना चिकना पत्थर है इसका मकसद नहीं है। if the sling is not strong enough, अगर गोफन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो there's no point in using that stone. कोई पॉइंट नहीं होगा उस पत्थर को यूज करने। Let our slingshots be stronger this morning, हमारा जो church. गोफन है वो एक ताकतवर होना चाहिए। As a kid, I always tried playing this slingshot. मैं जब छोटी थी मैं गोफन को यूज करती थी। I always used to like to play these tough games. मुझे बड़ा पसंद था ऐसे टफ गेम खेलना। I used to climb up trees but don't know how to come down. मैं क्लाइंब करती थी पेड़ों को और पता नहीं था कैसे नीचे। And I used to get nice patkas from my mother because I used to climb up and don't know how to come down. Then I would cry for help. My mother used to hit me and while she used to hit me, I don't know how to come down from the tree. मुझे पता नहीं था कैसे पेड़ से नीचे And I used to be so fascinated when these boys of my age used the slingshots. और मैं बहुत आश्चर्यचकित होती थी जब मेरे एज के जो बच्चे हैं वो गोफन के साथ खेलते थे। And I remember the Sana telling me once, like, and it's very easy to use. मुझे याद है एक ब्रदर मुझे बोलते थे बहुत इजी है इसको यूज करना। Just put the stone in the sling. और पत्थर को बस गोफन में रखो। Just make sure you close one eye. और अपनी एक आंख को बंद रखो। And aim and release it. और निशाना लगाओ। And this tiny, I was this tiny girl. I used to do all that he used to tell me. मैं वही करती थी जो वो मुझे बताते थे। And when I release it, instead of going straight, it would go somewhere. जब मैं उसको छोड़ती तो वो सीधा जाने के बजाय और कहीं जाता था। A Christian life, our integrity, हमारी जो क्रिश्चियन लाइफ है वो परमेश्वर के आगे it कैसी should be strong. वो पावरफुल होनी चाहिए। When we don't know when to go in prayer and when to throw that stone at this giant, जब हमें पता नहीं है कि उस पत्थर को कब फेंकना है अपने दुश्मनों की ओर, you will miss the shot. आप मिस कर जाओगे शॉट। Our prayer life, our spiritual life should be strong before the हमारी Lord. जो प्रार्थना का जीवन है वो एक तंदुरुस्त जीवन होना चाहिए। There should be a balance in our walk with God and our spiritual aspects. हमारे जो वॉक परमेश्वर के साथ चलना है वो उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। You should know when to go on your knees before God and when to stand up against the giant. आपको पता होना चाहिए कि आपको कब घुटनों पे जाना और कब खड़े होना है दुश्मन के सामने। A shepherd with a sling brought down the giant. जो चरवाहा जो गोफन के साथ था उसने एक बड़े दुश्मन को नीचे गिरा दिया। David played his role very well. जो दाऊद है उसने अपना रोल है बहुत अच्छे से निभाया। He played his role very well with responsibility, उसने अपना रोल बड़ा अच्छे से निभाया। with accountability, उसने अपना रोल अच्छे से निभाया हर एक चीज में। and his calling with integrity. और उसकी जो कॉल थी परमेश्वर के साथ। He used the right gift at right time. और उसने उस जो अपने गिफ्ट को सही टाइम पर यूज किया। And David was not just a shepherd. जो दाऊद था वो अकेला चरवाहा नहीं था। He was a worshipper. वो आराधक भी था। He was a worship leader. और वो आराधा भी करवाता। He was an armor bearer. वो जो हथियार है उनको भी रखता। And in this story, he was a warrior. और इस कहानी में वो एक लड़ने वाला भी था। And then he became a king. और वो उसके बाद एक राजा बना। And before all this started, while he was just a shepherd, ये सब स्टार्ट होने के पहले जब वो एक चरवाहा ही था। Prophet Samuel said, "You will be the king of Israel soon." जो प्रॉफिट था सैमुएल उसने कहा कि तू बहुत जल्दी राजा होगा। And the prophetic words didn't happen in one day. जो प्रोफेसी है वो एक दिन में नहीं पूरी हुई। It took almost 13 years और उसके बाद 13 साल लगे। till his appointment as a king.
और उसकी अपॉइंटमेंट के लिए David was faithful with each role. दाऊद जो है वो विश्वास योग्य था हर एक रोल में। He was a worshipper when no one else was watching him in wilderness. वो आराधक था जब उसको कोई भी नहीं देख रहा था उस जंगल में। He was a faithful worship leader playing that harp before Saul when he was tormented by the evil spirit. वो आराधक था जब दुष्ट आत्मा उसको सताती थी जंगल में। And Saul said, "You will be an armor bearer in my courts." जो सॉल था उसने दाऊद को कहा कि तू आर्मर बेयर करेगा मेरे महल में। And he was faithful. और वो विश्वास योग्य था। He did every role faithfully. और उसने हर एक रोल को विश्वास के साथ किया। And while David doing all this, he didn't forget his responsibility over the sheep. उसने अपनी रिस्पांसिबिलिटी नहीं भूला भेड़ों के ऊपर। Chapter 17 verses 15 and 20, it says David entrusted his sheep with another person before going to this battlefield. पहला शमूएल उसकी 17 की 15 में कहा कि जो दाऊद है उसने अपनी भेड़ों को किसी और को दिया उसकी टेक केयर करने के लिए। Be faithful with the resources God placed in your life. विश्वास योग्य रहें जो परमेश्वर ने चीजें आपके जीवन Be में दी। accountable with your roles. जो अकाउंटेबल रहें परमेश्वर ने जो रोल दिया आपके Use your calling in obedience and discipline. अपनी कॉलिंग जो आपकी बुलाहट है उसको ओबीडियंस के में चले। And above all, display servant leadership just like David did. जैसे सर्वेंट लीडरशिप है उसकी तरह जैसे डेविड चला वैसे रहे। God didn't just elevate David as a king in one day. जो परमेश्वर है उसको दाऊद को एक दिन में नहीं दाऊद राजा बनाया। With every role, he got an opportunity for character shaping. हर एक जगह पर हर एक रोल में उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली अपने कैरेक्टर को सीधा करने में। He was allowing God to build him up as he was playing that role. जब वो परमेश्वर को अलाउ कर रहा था उसको बनाने में, जब वो ये सारी चीजें कर रहा था। And when he became a king, जब वो राजा बन गया, Bible says people found solace in the leader. People found peace with the leader. वो उनको एक पीस मिला दाऊद के साथ। People found a good leader in David. उनको एक अच्छा अगुआ मिला दाऊद में। If you are called and anointed by God, अगर आप बुलाए गए और परमेश्वर के द्वारा अनॉइंट किए गए, use that in a responsible way. उसको यूज करें एक रिस्पॉन्सिबल वे में। And allow God to do the leading. और परमेश्वर को अलाउ करें कि वो आपको लीड कर सके। He wasn't supposed to be in the battlefield. वो उस झगड़े के मैदान, उसके लड़ाई के मैदान में नहीं होना चाहता था। But he was there because Daddy said so. वो वहाँ पे था क्योंकि परमेश्वर उसके पिता ने उसको कहा। I like to acknowledge, this was not planned, but I like to acknowledge Ruel in this place. मैं चाहती हूँ कि मैं एक्नॉलेज करूँ रूएल को यहाँ पर। I really like when young people, young men and women stand up for God. मुझे पसंद है जब बच्चे जो यंग हैं वो परमेश्वर के लिए आकर खड़े होते हैं। And I pronounce blessings over them. मैं प्रोनाउंस करती हूँ परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर। He was here because Daddy said so. वो यहाँ पर था क्योंकि उसके पिता ने उसको बोला। And the battlefield God is setting up for you जो परमेश्वर आपके सामने जो लड़ाई के मैदान को खड़ा कर रहा है, is an opportunity to bring giant one day. वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि वो आप उस जायंट को नीचे गिरा Be responsible and accountable. और वो रिस्पॉन्सिबल रहे उस चीज के And लिए। let the Lord do the leading. और परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर आपको लीड करेगा, गाइड करेगा। Of all the roles David played, और जितने भी रोल्स थे दाऊद ने प्ले किए, my favorite was armor bearer. जो मेरा फेवरेट है वो आर्मर बेरर। 1 Samuel chapter 16 and verse 21. पहला शमूएल उसके 16 की 21। David came to Saul and entered his service. Saul liked him very much, and David became one of his armor bearers. और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और शाऊल उसे बहुत प्रीति करता था और पसंद करता था, और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। Bible says Saul liked David. बाइबल कहती है कि जो सॉल था वो दाऊद को पसंद करता। But the qualities to be an armor bearer, जो हथियार ढोने वाले की जो क्वालिटीज हैं, they should be loyal. वो लॉयल होती हैं, They should be bold. वो बोल्ड होती हैं, They should be watchful. और वो ध्यान देने वाली होती हैं, And above all, they should have deep respect for their leader. और उनको जो एक अपने जो लीडर है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। If you might be thinking what there might be no role as armor bearer in today's time.
अगर आप देखते हैं कि आज के समय में कोई भी हथियार ढोने वाले का रोल नहीं है। An armor bearer in today's time is one with godly character. आज का जो हथियार ढोने वाला है वो परमेश्वर का जो कैरेक्टर लेके A चलता trustworthy person. है, जो विश्वास योग्य A patient-filled person. जो पेशेंस रखने वाला इंसान है, A helper who stands by the servant of God. और वो इंसान जो परमेश्वर के दास के साथ खड़ा होता They है। say that Pastor will be there with you. पास्टर हम आपके साथ खड़े होंगे। Decide for yourselves what role God is placing before you today. आप अपने लिए डिसाइड करें, डिसीजन करें कि आपके मन में परमेश्वर क्या डालना है। David allowed God to shape his character by playing each role. दाऊद ने परमेश्वर को अलाउ किया कि वो उसके कैरेक्टर को एक शेप दे सके, He was faithful. और वो विश्वास योग्य था। Bible doesn't say how long he was an armor bearer, बाइबल ये नहीं कहती कि वो हथियार ढोने के लिए कितने समय तक था, but his capacity as armor bearer impressed something in Saul. वो जो हथियार ढोने की जो उसकी कैपेसिटी थी वो सॉल के अंदर उसने बड़ा When काम David went to Saul and said, I did this, it was not hard for Saul to believe. जो दाऊद है वो जब सॉल के पास गया और उसने कहा कि मैंने ये किया, वो मुश्किल नहीं था सॉल के लिए Because believe Saul करना। saw the power of God over क्योंकि David. सॉल ने देखा था परमेश्वर का पावर उसके जीवन में। Be faithful with what you are entrusted with. फेथफुल, विश्वास योग्य रहें कि जो चीजें परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी, Whether it's putting chairs in the church, अगर कुर्सियां लगाना चर्च में है, or serving tea, और या चाय देना है, or emptying the dustbins, और या डस्टबिन को एम्प्टी करना है, just be faithful. विश्वास योग्य रहे। Come to church. परमेश्वर के घर में आए, Be part of the fellowship. पार्ट बने फेलोशिप का, And use every opportunity placed before you. और हर एक अपॉर्चुनिटी को यूज करें जो परमेश्वर ने आपको दी है। Use it in humbleness, हम्बलनेस के द्वारा, in faithfulness, और विश्वासता के द्वारा, and submissiveness. और अपने आप को झुका के। And we need to know that the God we serve is the one who deserves the attention. हमें ये जानने की जरूरत है जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो ही उसको ही सारी टेंशन When we do this faithfully, diligently, जब हमें अच्छे विश्वास के साथ ये सारी चीजें करेंगे, God will entrust you with next opportunity. फिर परमेश्वर आपको अगली जो अपॉर्चुनिटी उसके लिए तैयार करेगा। Luke chapter 16 verse 10 says, लूका 16 की 10 में देखते हैं, whoever can be trusted with little, जो भी थोड़े के लिए ट्रस्ट किया जाएगा, they can be trusted with much. वो उनके ऊपर विश्वास किया जाएगा बड़ी चीजों के लिए। Whoever is dishonest with the little, जो थोड़े में भी डिसऑनेस्ट है, they will be dishonest with much. और वो डिसऑनेस्ट रहेंगे जब उनको बड़ी चीजें देंगे। I like the KJV translation. मुझे केजेवी ट्रांसलेशन बड़ी पसंद है। He says that he that is faithful in which is least वो उसमें लिखा है कि जो थोड़े में भी विश्वास योग्य है, is also faithful in much. और वो विश्वास योग्य रहेगा बड़ी चीजों में भी। In real life, the least can be any insignificant work that you are doing for God. जो असल जिंदगी में थोड़ा कुछ भी हो सकता है, चाहे छोटी चीजें हैं या बड़ी चीजें हैं। It need not be a very popular thing like standing in the front and leading worship. वो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आगे खड़े होकर वर्शिप करना है या प्रीच करना है। It need not be a task that puts you in spotlight and brings glory to you. वो ऐसा कुछ टास्क नहीं होगा जो आपको स्पॉटलाइट में लेके आता है और जो आपके लिए एक ग्लोरी लेके आता है। Our faithfulness should never be tied to the works we do. हमारी जो विश्वास योग्य है वो किसी गांठ से बनी नहीं होनी चाहिए। But our faithfulness should be tied to the one who called us to do हमारा the जो works. विश्वास है वो उसके ऊपर टिका होना चाहिए जिसने हमें बुलाया है। I'll give you a quick testimony. मैं एक छोटी गवाही देना चाहती हूँ। The previous church, जब हम पिछले चर्च में थे, we were also Connect Group leaders. हम कनेक्ट ग्रुप लीडर भी थे। And as part being a Connect Group leaders, हम कनेक्ट ग्रुप लीडर होने के कारण and every quarter we need to arrange the morning tea. हमें हर तीसरे महीने में मॉर्निंग टी अरेंज करनी पड़ती है। And it's not just bringing snacks or coffee. और ये नहीं था कि हम स्नैक्स और चाय लेके आते। You need to set the tables. हमें टेबल्स अरेंज करने You need पड़ते to set up everything. हमें सब कुछ अरेंज करना पड़ता था। And when everyone finishes eating, drinking and go back home, जब सब लोग खत्म करके अपने अपने घर जाते थे, we need to mop the floors. हमें मॉप करना पड़ता था। We need to फ्लोर पे। clean the floors and vacuum them. हमें वैक्यूम करना पड़ता था पूरे Arrange चर्च को, everything back into the same order और सेम ऑर्डर में सब कुछ अरेंज करना पड़ता था, and pick up everything that's on और the हर एक floor. रबिश को पिकअप करना पड़ता था। And I remember Pastor was the one who always do mopping. Even we had other men in the team. और मुझे याद है कि मैं हमेशा वहाँ पर पोछा लगाता था And I used to do the dishes. और मैं बर्तन को मांजती थी। A leader should be the one to do the first. जो लीडर है वो एग्जाम्पल होना चाहिए। Bible is about servant leadership. बाइबल जो है वो सर्वेंट लीडरशिप के It's बारे not में। about the show of business, but we have to get our hands dirty when we want to do for the Lord. ये कोई शो ऑफ चीज नहीं है, पर हमें जब अपने हाथों को गंदा करना है, हमें परमेश्वर के लिए हमें करना पड़ेगा। You know why Peter was
called as the rock? आपको पता है कि पतरस को क्यों पत्थर चट्टान बताया गया था? Why Jesus said, "I'll build my church on this rock"? आपको पता है क्यों पतरस को यीशु ने कहा कि मैं अपना चर्च तेरे ऊपर बनाऊंगा? Because he followed Jesus when no one else was there. वो उसने परमेश्वर को फॉलो किया जब कोई भी नहीं था। He and his brothers were the first disciples of Jesus. उसके वो और उसका भाई पहले डिसाइपल थे। There was no यीशु के। crowd, there was no following, there was no popularity. और वहाँ पे कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, कोई क्राउड नहीं थी, कोई भी नहीं था। They just followed Jesus because they saw Jesus. वो उन्होंने यीशु को फॉलो किया, यीशु को पीछे चले क्योंकि उन्होंने यीशु को देखा। 3 characteristics that brings elevation in every believer. हमारे जीवन में 3 कैरेक्टर ऐसे हैं जो हमारे जीवन में उछाल लेके आते हैं। One is faithfulness. विश्वास योग्यता। Bible, as I said, doesn't mention how long David played armor bearer role. बाइबल कहती है कि इस कभी मेंशन नहीं करती कि कितनी देर तक हथियार ढोने वाले का रोल किया। He was faithful with what he did. वो विश्वास योग्य था, उसके पास जो भी काम था। Be faithful in what God has placed you in. विश्वास योग्य रहे कि किस चीज में परमेश्वर ने आपको रखा है। It has become a trend these days, यहाँ अभी आजकल ये ट्रेंड बन चुका and है। it breaks our heart. ये हमारा दिल दुखाता है। People love to assign themselves with mega ministries. लोग जो हैं बड़े चर्चों के साथ अपने आप को साइन करने की कोशिश। We were talking to a young girl last week, हम एक यंग लड़की के साथ बात कर रहे थे पिछले वीक में। and they said, "Oh, I serve every week." वो बोली कि मैं सर्व करती हूँ हर वीक। Then I was interested because, as I said, I like when young people serve God. मैंने उसको पूछा, मुझे पसंद है जब ये जवान लोग सर्व करते हैं परमेश्वर I को। asked, "What do you do?" मैंने उसको पूछा क्या करती हूँ? I take coffee orders. वो बोलती मैं कॉफी ऑर्डर्स लेती हूँ। She was so capable of so many things. कैपेबल वो थी बहुत चीजों के लिए। We said, "Come, help us." मैंने उसको बोला आइए हमारी मदद करें। वो बोली नहीं, We are faithful in where we are doing. हम विश्वास योग्य हैं, हम जहाँ पर जो भी कर रहे हैं। And it's not that they were asked to do that. ये नहीं है कि वो उनको पूछा था किसी It's ने not an करने। opportunity placed before them. ये अपॉर्चुनिटी जो उनके सामने रखी It's an opportunity they created and calling it serving. वो उन्होंने अपने खुद के द्वारा अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है जो उसको And there सर्विस was, बताते हैं। irrespective of how many years of friendship we had, they said no. ये कोई नहीं कि कितने सालों की हमारी फ्रेंडशिप है पर फिर भी उन्होंने कहा ना। And pastor said it's okay. मैंने बोला इट्स ओके, That's fine. इट्स ओके। And we continue doing what we are doing, and God sent people who would stand up with us. और मैंने कहा हम जो करते रहेंगे जब तक हम कर सकते हैं, परमेश्वर लोगों को भेजेगा हमारे साथ खड़ा होने के लिए। Be faithful what God has placed before you. विश्वास योग्य रहे जो परमेश्वर ने आपके सामने रखा है। And as you remain faithful, He'll build your character. जब आप विश्वास योग्य रहेंगे तो वो आपके कैरेक्टर को बढ़ाएगा, He will start empowering you. वो आपको एम्पावर करेगा, He शक्तिशाली will करेगा। enable you to move to the next role. वो आपको एनेबल करेगा अगले रोल के लिए। Don't just sit and wait and say, "God gave me this prophecy and He will do in His time." आप वेट ना करें उस प्रोफेसी के लिए जो परमेश्वर ने आपको दी हुई है। And don't be that person who says, "God, wherever you take, I'll follow. Whatever you give, I swallow." वो ऐसे पर्सन ना बने कि जो परमेश्वर जो भी आप मुझे जहाँ भी लेके चलेंगे मैं चलूंगा, जो भी आप मुझे देंगे मैं खाऊंगा। Be eager before God. परमेश्वर के लिए ईगर रहें, उत्साहित रहें। Understand your opportunity before you परमेश्वर की जो अपॉर्चुनिटी है जो उसने दी है उसको समझें and step into that with all faith. और उसके अंदर पैर रखें विद विश्वास के साथ। And then as you do that, your slingshot is becoming stronger, and when you throw that stone, it will hit the और giant. जब आप वो करोगे आपका जो गोफन है वो शक्तिशाली बनेगा, और जब आप पत्थर को फेंकोगे वो जाकर हिट करेगा। Second is submissiveness. जो सबमिसिवनेस है दूसरा वर्ड जो है। David didn't get excited and run towards the giant, वो एक्साइट होकर दाऊद जो जायंट की तरफ नहीं भागा, but he went to the king to take permission. वो राजे की तरफ गया परमिशन लेने के He लिए। said, "You say okay, and then I'll go." अगर आप कहते हो कि सही है फिर मैं जाऊंगा। I came across this quote in online. मैं ये कोट मैंने ऑनलाइन देखा। Submitting your ways to God isn't slavery, but rather it's a freedom. जब आप अपने आप को सबमिट करते हैं परमेश्वर के आगे, वो स्लेवरी नहीं है पर एक फ्रीडम है। Be submissive. सबमिसिव रहे परमेश्वर के साथ। A worshiping heart is always a submissive heart. जो आराधक का दिल है वो हमेशा सबमिसिव का दिल है। I want to read from Hebrews 13 and verse 17. मैं पढ़ना चाहती हूँ हिब्रू 13 उसकी 17 आयत। Have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. 13:17.
अपने अगुओं का आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं और तुम्हारे लिए प्रार्थना दुआ करते हैं और तुम्हारे लिए हर वो दुख सहते हैं जो तुम्हारे लिए बना हुआ है, ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। Be it your office, home or church, submissiveness is very, very important. अगर चर्च है, घर है या काम है, सबमिसिवनेस जो बहुत जरूरी है। Submissiveness is not slavery. सबमिसिवनेस जो है वो स्लेवरी नहीं है, It's not becoming small. छोटा होना नहीं, It's a freedom to choose. वो एक आजादी है जो हम It चुनते हैं। means submission. उसका मतलब है सब मिशन। Means coming under the mission God placed over you. उसका मतलब है कि जो मिशन है परमेश्वर ने हमें दिया उसके अंदर आना। Be honorable towards your leaders at workplace. जो आपके जो बॉसेस हैं, लीडर्स हैं, उनके आगे सबमिसिव रहें। Be submissive to the authority at home. जो सबमिसिव है, अथॉरिटी जो घर पे है उसके नीचे सबमिसिव Be रहे। submissive to the spiritual leaders. जो सबमिसिव है अपने अगुओं के लिए, जो आत्मिक अगुए हैं। And the last point is readiness. जो आखिरी है वो है रेडीनेस। David did not just go like that. जो दाऊद था वो ऐसे नहीं गया। He didn't go to the battlefield as going for a picnic. वो ऐसे नहीं गया कि वो कुछ पिकनिक बनाने जा रहा है। He went in preparedness. वो अपने आप को पूरी तैयारी के His साथ, slingshot was with him. उसके गोफन जो उसके साथ था। Be prepared in season and out of season. अपने आप को तैयार रखे सीजन में और नॉन सीजन में। Or to act in the strength from God. और उस तरीके से एक्ट करें जो परमेश्वर की शक्ति आपको है। And he was not scared of the big giant. वो डरा नहीं हुआ वो बड़े गुलायत से, Because he knew God was shaping him all this while. उसको पता था कि परमेश्वर उसकी शेप कर रहा He है। might have a small gift in his hand, उसके हाथ में जो छोटा एक गिफ्ट है उसके हाथ में, but he knew that the God-given opportunity will never leave him in failure. उसको पता था कि जो परमेश्वर ने अपॉर्चुनिटी दी वो उसको पीछे नहीं छोड़ेगा। And God-given opportunity will not leave him in crisis, और जो परमेश्वर ने उसको अपॉर्चुनिटी दी है उसको बुरी तरीके में नहीं डालेगी, but it will lead to victory in Jesus' और name. उसको विजेता बना के लेके जाएगी यीशु मसीह के नाम। All Jesus knew was he needed that authority from God and power of God. और जो यीशु है उसकी जो अथॉरिटी वो ऊपर परमेश्वर की ओर से आती है। And he was clear of the mission God placed before him. और यीशु जो थे वो क्लियर थे अपने उस मिशन के लिए, मकसद के लिए जो परमेश्वर ने उसके आगे रखा। And he exactly did what God wanted him to do. और उसने वो ही किया जो परमेश्वर उसको चाहता था वो करे। And if I don't know if you remember last week, Pastor said, when enemy comes to upset you, परमेश्वर आपको में भी याद नहीं कि जब दुश्मन है जो आपको अपसेट करने आता है, God will set you up over the victory. तो परमेश्वर वो आपको ऊपर उठाएगा जीत कर। Do not despise the humble beginnings where God has placed you. जो छोटी शुरुआत है उसको छोटा ना जाने। I started my serving in the church as a welcome team. मैंने अपनी जो सर्विंग है वेलकम टीम की तरह से I was not even confident of how to speak well. मुझे ये भी नहीं पता है कि बोलना कैसे है। Forget about 20 people. I cannot even talk in front of 2 people. भूल जाए 20 लोगों के, पर मैं 2 लोगों के सामने भी बात नहीं कर सकता। 18 years into serving the Lord. 18 साल परमेश्वर की सर्व किया। Faithfulness, विश्वास योग्यता के साथ, submissiveness, सबमिसिवनेस के साथ, and readiness. और हमेशा तैयार रहने के साथ। When we came here to start this church, जब हम यहाँ पर आए इस चर्च को जब हमने स्टार्ट किया, it didn't matter to us how many people are sitting in front of ये us. मैटर नहीं किया कि कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, It didn't matter to us people are coming and standing with us or not. और ये मैटर नहीं किया कि लोग हमारे साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, It didn't matter to us for a long time when people said no to us, और ये हमें मैटर नहीं किया कि हमारे साथ हमें लोगों ने ना किया, because the upset that from the enemies is set up from God for victory. और परमेश्वर का हमें पता था कि परमेश्वर हमें एक बड़ी विजेता के लिए बनाया। The fear that the enemy was throwing at these people of God. जो दुश्मन जो डर इन लोगों के ओर फेंक रहा था, Listen to this carefully. इसको ध्यान से सुने। The fear that the enemy was throwing at the people of God. वो जो दुश्मन जो डर फेंक रहा था लोगों परमेश्वर के लोगों की तरफ, David took it and threw it back at the enemy. और जो दाऊद है उसने उसको वापस फेंक दिया अपने Verse 24, chapter 17 and verse 24 says that the enemy ran away in fear. 17 की 24 में लिखा कहता है कि जो दुश्मन है वो भाग गए डर के मारे। They forgot that this giant who was throwing those insults for their sake is dead and they have to look after him. और वो भूल गए कि जब वो जो गुलायत था वो उसको गिरा हुआ देख के वो सारा कुछ भूल गए, उनको देखना था। He fell face down. They don't even know he died or not. वो अपने मुंह पर गिरा, उनको ये भी नहीं पता कि वो मर गया कि नहीं। But the enemy ran away in fear. और जो दुश्मन थे वो डर के भाग गए। If you stand up to build the kingdom of God, अगर आप खड़े होते हैं परमेश्वर की
किंगडम को बड़ा करने He के will लिए, not step back from building your और kingdom. वो पीछे नहीं हटेगा वो किंगडम अपनी Come on, बनाने let's के stand to लिए। our feet this आइए morning. हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं सुबह। Do not despise the small beginnings, जो church. छोटी शुरुआत है उसको छोटा ना जाने। As Pastor said, we are the chosen church, हम चुने हुए लोग हैं, brought together for a purpose. हमें बुलाए गए हैं एक पर्पस के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करें सुबह के समय में जो परमेश्वर ने हमें दिया। लेट्स क्लोज आवर आईज इन दिस मॉर्निंग फॉर दिस वंडरफुल वर्ड व्हाट वी गॉट टुडे, दैट द शेपर्ड बॉय who won the war for God's people. हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी लड़ाइयां हैं, कई बार हम अपने बल से लड़ने की कोशिश करते हैं, हम अपने बल के साथ उन चीजों को जीतने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर ने, जो शैतान ने हमारे जीवन में दी है। कई बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। बाइबल कहती है ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा। जब हम उसके आत्मा के द्वारा चीजों को करना शुरू करते हैं तो वो रास्ता बनाना शुरू करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम में से बहुत से हैं जो आज ऐसी सिचुएशन में से गुजर रहे हैं कि परमेश्वर तू कहां है। परमेश्वर ये शैतान मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, मेरे आगे ये मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। मेरी प्रार्थना के जीवन को स्ट्रॉन्ग करें यीशु, कि मैं ये जो लड़ाई है मेरे सामने मैं इसको जीत सकूं, जो गोलायत मेरे सामने मैं इसको मुंह के बल गिरा सकूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसका हाथ आज भी जीवित है, वो आज भी जिंदा परमेश्वर है। वो आपको जानता है, वो आपको पहचानता है। उसकी टेस्टमनी जो आप गवाहियां हैं आपके जीवन में आज भी हैं, उसका हाथ आज भी बादल की तरह आपके साथ साथ चल रहा है। He is the same God, never changing, never failing, everlasting of everlasting. कभी ना बदलने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा। हालेलुया। अपना भरोसा ना घोड़ों पे ना रथों पर बल्कि उस जिंदा खुदा पर रखें जिसने पूरी धरती को बनाया, संसार को बनाया, हमें और आपको बनाया। वो दाऊद का परमेश्वर, वो अब्राहम का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर आज भी आपके साथ खड़ा है और आपके साथ बात करता है। हालेलुया। उसका पवित्र आत्मा आपको लीड करता है, गाइड करता है। वो एक सच्चा चरवाहा है जो आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। वो एक कुम्हार की तरह आपको दोबारा बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बस उसके साथ विश्वास के साथ बने रहें और भरते रहें। हालेलुया। कोई भी चट्टान आपके सामने जब खड़ी होगी, जब आप विश्वास में है, प्रार्थना में है, तो आप कहेंगे चट्टान तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ए पहाड़ तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ए मुसीबत, ए लहरों, तूफानों तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे पता है कि यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर को अपने जीवन में इनवाइट करें, उसको इनविटेशन दें, कहें परमेश्वर तू बढ़ता रहे मेरे जीवन में और मैं घटता रहूं। परमेश्वर तू बढ़ता रहे मेरे जीवन में, मैं घटता रहूं। हालेलुया। मेरे जीवन से तेरे नाम को महिमा मिले। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर, परमेश्वर से कहें परमेश्वर आई सरेंडर ऑल, आई सरेंडर ऑल। यीशु तू मेरे कमियों को, मेरी घटियों को, मेरे दुखों को जानता है परमेश्वर। मेरे में कोई खूबी नहीं परमेश्वर, मेरे में कोई खूबी नहीं, मेरे में कोई लियाकत नहीं परमेश्वर, मेरे में कोई ऐसी बात नहीं कि मैं तेरे सामने खड़ा भी हो सकूं। मैं एक पापी इंसान, उससे कहे परमेश्वर मेरे गुनाहों को उठाने के लिए, मुझे माफ करने के लिए तेरा धन्यवाद। मेरी हर एक मुसीबत को खत्म करने के लिए तेरा धन्यवाद, मेरी बीमारियों को खत्म करने के लिए तेरा धन्यवाद यीशु। हालेलुया। उसे कहे कि परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा मुझ में उंडेल, कि मेरा जो प्याला है वो उमड़ उमड़ कर बहे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तू बढ़े
मैं घटूं, मेरे जीवन में महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े। हाँ प्रभु जी, यस गॉड, यू इंक्रीज इन आवर लाइफ लॉर्ड जीसस। परमेश्वर हमें ऐसा बनाए कि हम तेरे वचन के साथ जुड़े रहें परमेश्वर, प्रार्थना में बने रहे परमेश्वर, और मजबूत हो जाए यीशु मसीह। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तेरे बच्चों के लिए परमेश्वर, तेरे दासों के लिए, तेरे दासी के लिए परमेश्वर, जितने भी लोग हैं यहाँ पर परमेश्वर के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी यीशु कि तेरा ताजा मसा, तेरी अनॉइंटिंग इनके जीवन में आने पाए परमेश्वर। तेरे लोग परमेश्वर जो तुझे प्यार करते हैं परमेश्वर, पूंछ ना बने बल्कि सर बने। They'll not be the tail, they'll be the head in Jesus name. हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को आजाद करे, उनके साथ खड़ा हो यीशु मसीह, इनके साथ खड़े हो यीशु नासरी। इस पूरे वीक में परमेश्वर तेरा बल, तेरी आत्मा इनको लीड करे, गाइड करे परमेश्वर, तेरा पीस इनके साथ जाए परमेश्वर, जहां भी कदम रखे परमेश्वर, तेरे लोग विजेता बने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तेरे लोग विजेता बनकर बने परमेश्वर जिए यीशु, इनके परिवारों में शांति बने रहे यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। जो लोग बचे नहीं हैं इनके परिवारों में, वो भी बचाए जा सके यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है जो परमेश्वर जहां पे इनको विक्ट्री की जरूरत है, यीशु मसीह के नाम में विक्ट्री मिले। हालेलुया। विक्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस, विक्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर विक्ट्री में तेरे लोग जी सके।